Good afternoon. Good afternoon, everyone. Today we have Dr. Mansi Chauhan. She is breast surgical oncologist in Paras Hospital, Gurgaon. So, welcome, ma'am. Thank you, Deepa. Good afternoon, everyone. Hope you are all doing fine, taking all the necessary precautions and care during the COVID times. Thank you for joining us today. Thank you, ma'am. So, let's start the topic. Today we are going to speak about that is what is the surgical options. Yeah, so today's topic is, Deepa, precisely what are the surgical options for breast cancer? So, if we talk about surgeries in breast cancer, if we go and dig in some history, so maybe 50 years back, when a patient or a lady was diagnosed with breast cancer, the only option she would have was removal of the complete breast. So that was a very mutilating surgery back then. So the whole of the breast tissue was removed and the underlying muscle and everything. So that was the only option the lady would have if she was diagnosed with breast cancer. But that was like decades ago, 50 years or maybe more than that. So in recent past, because as we all know, breast cancer is the most common disease, most common cancer amongst women. So a lot of researches and a lot of studies have happened regarding this subject. So now no longer removal of the breast is the only surgery which is being offered to the patient. So that surgery that is called mastectomy or a modified radical mastectomy, that is complete removal of the breast. That was the surgery being done earlier. Now also it is being done, but there are more and more options which are available these days. So with the researches and the studies which have happened over the past few decades, now we have a better understanding about the disease, about the breast cancer disease, as well as about the treatment which can be offered to a patient. So the surgical options have also, there is a whole spectrum of surgeries which can happen. तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी कि उसका ब्रेस्ट रिमूवल ही होगा. देर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल, सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर टुडे टू डिस्कस अबाउट द अदर ऑप्शंस. So the other options rather than a complete removal, that is a mastectomy, is a breast conservation surgery. So ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी से हमारा मतलब होता है कि हम ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, उसको रिमूव करते हैं, लेकिन पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So by that the patient gets rid of the cancer, but does not but the breast, we are able to save the breast. So the patient does not have to lose the breast at the end of it. So that is a breast conservation surgery which is being performed for decades now. Yes, ma'am. So, is breast conservation safe? Yeah, so that is a very common question which is being which is being asked in a clinic. So if you offer a patient ki we can just remove the tumor and not the complete breast, maybe because of the fear of the disease. कभी हम इतना डर जाते हैं उस डिजीज से, या फिर पेशेंट को पहले से स्टिग्मा है किसी से, रिलेटिव से या कहीं से पता चल गया है कि नहीं हमारा तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो पूरा ब्रेस्ट रिमूवल ही हुआ था, तो एक स्टिग्मा भी है उसके साथ में अटैच. सो इन सब कारणों की वजह से पेशेंट ऑफन पूछता है या डरता है कि अगर हम ब्रेस्ट पूरा रिमूव नहीं करेंगे तो शायद उसमें बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी. So regarding that, whenever we conserve the breast or whenever a breast conservation surgery is performed, it is always combined with a radiation therapy. So जो रेडियोथेरेपी होती है, सिकाई होती है, वो उन सारे पेशेंट्स को जिनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन हुआ है उनको वो रेडियोथेरेपी भी मिलती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टडीज, अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी प्लस जब उसमें हम रेडिएशन ऐड कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स कंप्लीट मैस्टेक्टमी के बराबर हो जाते हैं. तो अगर हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हैं या फिर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन करके रेडिएशन दे देते हैं रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट को, तो उसके रिजल्ट्स इक्वल होते हैं. मतलब जो रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिकरेंस की बीमारी वापस तो नहीं आएगी उसमें, या कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है कि नहीं, तो इसी वजह से हम उसको रेडिएशन के साथ में कपल करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कंजर्वेशन सर्जरी का टेक्निक है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए.
जैसे उसमें प्रॉपर 100% ट्यूमर बाहर होना चाहिए, जो उसके मार्जिन होते हैं सर्जिकली वो फ्री होने चाहिए. सो एक प्रॉपर टेक्निक से करा हुआ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी along with radiation surgery is radiation therapy is very much safe and actually equivalent to a complete mastectomy. So, can there is one question. So, can breast reconstruction be done after complete breast removal surgery? Yes, so obviously, so if there are two options, whether we can remove the complete breast or it can be conserved, only the tumor can be removed. So even if a patient goes ahead and removes the complete breast, reconstruction is very much possible. So reconstruction of the breast can be done at the time of the surgery as an immediate reconstruction, or it can be done later on as a delayed reconstruction. तो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन से हमारा मतलब है कि मैस्टेक्टमी हुआ है, कंप्लीट रिमूवल हुआ है और उसी सर्जरी में दोबारा नया ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो वो इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन होता है. एंड डिलेड रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम मे बी आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर हम उसको बाद में भी रिकंस्ट्रक्ट करें. सो यहाँ पर थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो एंड अक्रॉस द वर्ल्ड में डिफरेंस आ जाता है. हमारे कंट्री में क्योंकि थोड़ा एडवांस कैंसर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मैस्टेक्टमीज भी ज़्यादा होती हैं और मैस्टेक्टमीज के बाद रिकंस्ट्रक्शन रेट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है. अगर एक मैस्टेक्टमी के बाद में पेशेंट विल जस्ट कि आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम द ट्रीटमेंट, मे बी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द डिजीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिस वजह से रिकंस्ट्रक्शन रेट इज हार्डली 20% in our country. And if we talk about breast conservation rate, that is also very low, like about 30% in our country, as compared to developed countries where the conservation rates and reconstruction rates are as high as 70%. But we are at 30%, 20% in our country. So most of it is because of the type of disease we have. Maybe हमारी disease ही बहुत later stage में आती है कि उनको कंजर्वेशन और ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, प्लस जो कॉस्ट इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट का, रिसोर्सेज है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें बिकॉज वी आर लैकिंग इन दिस, सो ये परसेंटेज का डिफरेंस है. प्लस हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्टेज में जो कैंसर पकड़ में आ जाता है ये भी हो नहीं पाता है. सो जब लेटर स्टेजेस में कैंसर आता है तो प्रायोरिटी पेशेंट की भी चेंज हो जाती है. दे थिंक कि मे बी I don't want to think about cosmetic aspects of the disease. I just want to get rid of the disease. So ये issues आ जाते हैं. Otherwise, there is one more thing which is called breast oncoplasty. So oncoplasty is basically two words, onco and plasty. So इसमें हम ट्यूमर रिमूव करते हैं ब्रेस्ट में, प्लस प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक से ब्रेस्ट को रीमॉडल कर सकते हैं, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर मोल्ड रहे पेशेंट के लिए. So ये oncoplasty is quite revolutionary and a novel technique which is being used these days. And ये oncologically मतलब कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ होती है, क्योंकि हम कंप्लीट ट्यूमर बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं अगर हम ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक यूज करते हैं तो. प्लस प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि इसमें कंबाइन हो जाता है, तो फ्यूचर में पेशेंट को एक बेटर लुकिंग ब्रेस्ट और बेटर शेप ब्रेस्ट मिलता है. तो ये ऑन्कोप्लास्टी, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन which can be offered to patients these days. Because earlier they are not aware about this. Yes. So in fact by breast oncoplasty even larger tumors, तो पहले होता था कि कंजर्वेशन सर्जरी का ड्रॉबैक ये हो जाता था कि अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो फिर हम कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिफॉर्म्ड ब्रेस्ट इज एज गुड एज नो ब्रेस्ट. सो ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक से हम लार्जर ट्यूमर्स को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट रिडक्शन मैमोप्लास्टीज होती हैं, जैसे थेरेपेटिक मैमोप्लास्टी होती है, तो उसमें पेशेंट का जो टोसिस है, जो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी हम कहते हैं, उसके साथ में ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के साथ में ट्यूमर रिमूवल सर्जरी कंबाइन हो जाती है, तो पेशेंट को ट्यूमर भी बॉडी से निकल जाता है एंड अ बेटर लुकिंग ब्रेस्ट हो जाता है. सो दैट्स both the things can be done together. So there, yeah, lot of options are available in that. So, ma'am, I want to ask that does the type of surgery affect patient's psychological condition?
Yes, definitely it affects the psychological condition. So initially, when a patient comes to us and is surrounded by the fear of the disease कि अभी दिमाग में first time breaking bad हुआ है कि bad news है कि this is I'm suffering from cancer. So maybe at that point of time patient को ये ज़्यादा important morale is already down कि cancer हो गया उसके साथ में इतना taboo attached है. बट उस समय पेशेंट को यह रहता है कि नो जस्ट डू वट एवर इज बेस्ट फॉर मी रिगार्डिंग ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट कि अभी कैंसर मेरे बॉडी से कम्प्लीटली चले जाए उसके लिए जो आपको करना है वो कर लीजिए. But later, maybe down the line, 1 year or 2 years after that, now with such recent like studies and novel techniques and medicines and everything, chemotherapy है, targeted therapy है, इतना medicines available है breast cancer के लिए कि patient का survival भी increase हो गया है. Survival of a patient like survivors जो है breast cancer के they are living a very healthy and normal life. So maybe 1 year or 2 years down the line पेशेंट को साइकोलॉजिकली इस बात से बहुत फर्क पड़ने लगता है दैट शी इज डिवॉइड ऑफ वन ब्रेस्ट. सो इससे उनकी फेमिनिटी पे, इससे उनके सोशल बीइंग पे या एक सोशलाइजिंग जो एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, ये सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है बीइंग अ. यस. एंड इनफैक्ट प्रोफेशंस पे भी बहुत फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर है सो शी डजंट वांट टू बी सीन इन ओपन लाइक दैट, या जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है तो पीपल टेंड टू चेंज देयर प्रोफेशन और इवन लीव द प्रोफेशन एंड सिट एट होम. दे डोंट सोशलाइज दैट मच. सो इनिशियल फेज ऑफ कैंसर जो है उसमें तो डेफिनेटली बॉडी अंडरगोज लॉट ऑफ चेंजेस, हेयर फॉल होता है, सारा होता है. But maybe 1 year or 2 year down the line, you can't just pinpoint a patient from outside कि this is a survivor or this is a normal human being. But within the body जो self esteem है वो patient का बहुत कम हो जाता है. The way the femininity है वो कम हो जाता है. So there have been lots of studies on the psychological effects of what kind of surgery they have chosen. So mastectomy versus अगर breast conservation reconstruction हो जाता है, so there's a great deal of difference in the psychology of these kind of patients. And once the patient feels good about themselves, they have a good attitude, a positive attitude, all the things are, maybe the body develops some and the lifestyle, and everything changes. everything changes. So patient has, if the patient is feeling good about themselves, they'll have this inbuilt immunity which they will have, and they do well after that. So there have been studies which now say that breast conservation से शायद survival भी increase हो जाता है as compared to mastectomy. There have been studies like this. I think, do we have any more questions or then we can? So there is my personal question Yeah. to you, that some of the females think like if they done that mammography and all, and they come to know that they have tumor and all, so they are afraid about कि कैंसर तो नहीं होगा या कीमोथेरेपी कराऊंगी तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी, या ऐसे कुछ बहुत नॉर्मल इंसान के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे ब्रेस्ट रिमूवल कराना पड़ेगा. द थिंग इज सेट कि साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं. तो ये चीज मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय हम कैसे, बेस्ट थिंग क्या है, हम आके डॉक्टर से मिले और हमें, अब जैसे आप बता रहे हो कि हमारे पास ऑन्कोप्लास्टी और ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बहुत अच्छे ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं, तो ये हम कैसे बताएं, मतलब आगे. सी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टिग्मास और मिथ्स के साथ में अटैच्ड है. एंड कैंसर पर से ही बहुत अटैच्ड है, बट उसमें भी फीमेल कैंसर्स थोड़ा सा बिकॉज दे फील शाय और एम्बैरेस्ड टू शो देयर सिम्टम्स, तो ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी में. दे ट्राई टू हाइड ऑल दीज सिम्टम्स. यस. सो इसमें कुछ एक जो वेरी इंपॉर्टेंट मिथ्स है, आई वुड लाइक टू डिबंक दोज मिथ्स टुडे. फर्स्ट इज कि अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो वो कैंसर ही है. दिस इज अ मिथ. दिस इज अ कंप्लीट मिथ. 80% टाइम्स हो सकता है कि वो गांठ कोई बिनाइन या नॉन कैंसरस या और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं, सिस्ट होते हैं, फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, ये भी हो सकता है. सो जस्ट बिकॉज ब्रेस्ट में लंप है, गूगल पे हमने सर्च किया और लंप इज इक्वल टू कैंसर करके वो नहीं डिराइव करना है. यू शुड सी द डॉक्टर इमीडिएटली. एंड घबराने की उसमें कोई बात नहीं है. 80% टाइम्स प्रोबेबली वो
नॉन कैंसरस निकलेंगे. सो नॉट ऑल ब्रेस्ट लम्प्स मतलब करेक्ट टाइम पे पिकअप हो जाएगा. सो इफ यू फील अ लम्प इन द ब्रेस्ट, just see the doctor and don't get worried about it, because most of the times it might not be a cancerous thing. The other thing is कि मैमोग्राफी हमें कराने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज रेडिएशन है इन्वॉल्व उसमें. सो मैमोग्राफी का जो रेडिएशन है वो बहुत बहुत कम डोज का रहता है. उस रेडिएशन की वजह से कैंसर नहीं होता है. जो स्टडीज वगैरह जो नेट पे भी आपको दिखता है, दैट इज मोर बिकॉज ऑफ जो मल्टीपल एवरी ईयर जो नेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं, उनमें जब स्टडीज करें तो बहुत मिलियंस ऑफ लोगों पे करने में कुछ को रेडिएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है होता है. तो दैट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू अस. इन आवर कंट्री मैमोग्राफी इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बी डन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं है जो स्क्रीन करता ही है. तो अगर अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है मैमोग्राफी, तो आपको करना है. उसके उसके रेडिएशन की वजह से कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं. सिमिलरली बायोप्सी के लिए भी लोगों को लगता है कि बायोप्सी कर दिया अगर हमने ट्यूमर के अंदर तो वो फैल तो नहीं जाएगा, फट जाएगा या वो सेल्स इधर से उधर चले जाएंगे. तो ये भी कंप्लीट मिथ है. ये सारे जो मैमोग्राफी है, बायोप्सीज है, ये हजारों लोगों के ऊपर स्टडीज होती हैं और उसके बाद ही ये सारी टेक्निक्स जो डायग्नोस्टिक होती हैं, ट्रीटमेंट की टेक्निक्स होती हैं, तभी वो हम पेशेंट्स के ऊपर करते हैं. तो ये बहुत सालों से चली आ रही हैं चीज़ें, और इनकी वजह से कैंसर नहीं होने वाला है किसी को. दिस इज अ कंप्लीट मिथ. एक और जो बता रहे थे आपकी मतलब कैंसर है तो रिमूव कर ही देना चाहिए ब्रेस्ट, या फिर रिमूव होगा ही. कई बार इस वजह से भी लोग शाय अवे हो जाते हैं. बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि कैंसर है तो हम उसको ब्रेस्ट को ही रिमूवल कर देंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि शायद मेरी ब्रेस्ट बचेगी नहीं, मेरा एक साइड से वो निकाल देंगे. तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोस्त. एंड अ वेरी गुड एंड इक्विवेलेंट ऑप्शन. मतलब उस कहीं से भी इंफीरियर नहीं है वो ऑप्शन. इनफैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है. सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ पेशेंट. एक जो अर्ली स्टेज में आते हैं, बट क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट पूरा रिमूव करने से हमारा ठीक रहेगा, फियर ऑफ द डिजीज जो भी है, तो उस वजह से वो कहते हैं कि आप रिमूव कर ही दीजिए ब्रेस्ट हमारा. और दूसरी तरफ एक पेशेंट होता है जो आना ही नहीं चाहते हैं हॉस्पिटल में कि ब्रेस्ट हमारा रिमूव होगा, हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव आफ्टर दैट. तो ये मिथ्स हैं. इतना ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है, इतने टेक्निक्स हैं अभी ट्रीटमेंट के ब्रेस्ट कैंसर में. एंड दवाई के मतलब कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के तरफ से भी देखें तो भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं, और सर्जिकली देखें तो भी बहुत एडवांसमेंट हैं. नो लॉन्गर ये जो डिकेड्स पुरानी चीज़ें हैं, ये 50 साल पुरानी चीज़ें कि ये सारी ब्रेस्ट रिमूव ही हो जाएगा, या कीमोथेरेपी या दवाई करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. वो ये सारी चीज़ें अब बहुत, दिस इज ऑल ओल्ड थिंग्स. अभी ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अप्लाई नहीं होती हैं. In which age, like what is the age group of females we should go for the like all these things tested? या सो स्क्रीनिंग के लिए यूजुअली 40 ईयर्स हम कहते हैं कि 40 ईयर्स एंड अबव की जो फीमेल्स हैं उनको मैमोग्राफी ईयरली एनुअली कराना चाहिए. अगर कोई फीमेल 40 ईयर्स से कम एज की है लेकिन उनको कोई सिम्टम लग रहा है, पेन है या लंप है, तो वो भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर एज एंड द टाइप ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, हो सकता है उन्हें मैमोग्राफी एडवाइस करे डॉक्टर, या हो सकता है सोनोग्राफी एडवाइस करे जो अल्ट्रासाउंड होता है. तो दोनों मोडालिटीज इक्वली गुड हैं. कभी कभी एमआरआई की ज़रूरत भी इन फीमेल्स को पड़ सकती है. सो अगर स्क्रीनिंग एज अ प्रोटोकॉल करना है कि हमारा हेल्थ चेकअप में इंक्लूड करना है स्क्रीनिंग, तो वो 40 ईयर्स से ज़्यादा की जो फीमेल्स हैं उनको करना है. अगर उससे कम एज ग्रुप की फीमेल्स हैं तो वो सोनोग्राफी भी कर सकती हैं, बट उनको डॉक्टर के सुपरविजन में करना चाहिए. Like our mothers and our grandma, राइट. so we should advise them to talk to or consult or to screening and all. एग्जैक्टली. Okay. अगर कोई आपकी फैमिली में हाई रिस्क है, तो मतलब फैमिली हिस्ट्री है हाई रिस्क ऑफ कैंसर की, तो फिर जो ये स्क्रीनिंग की एज है वो 40 से भी कम में हो जाती है.
मतलब अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो फिर इनकी स्क्रीनिंग जो है वो और अर्लियर एज पे स्टार्ट हो जाती है. I think we are done with all the questions. So let us wrap up the session for today then. Thank you so much for joining us. And if you have any further questions, you can write to us on the Facebook page, and we'll try to solve those queries as much as possible. And stay healthy, stay blessed, take care. Thank you.